سب سے پہلے تو اس تنظیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک پیار و محبت کا ایک پیغام دیا جاتا ہے. گلگت بلتستان کے مختلف جگہوں پر یہ جا کے افطار پارٹیز ارینج کرتے ہیں. آج جگلوٹ میں آئے ہوئے ہیں تو یہ میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. اس طرح کے آرگنائزیشن اور پارٹیاں ہمیشہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے باہمی اتفاق, محبت اور یہ چیزیں بڑھتی ہیں. تنظیم کا بنانے کا جو مین مقصد تھا وہ گلگت بلتستان سے علاقائیت, قومیت, فرقواریت کا خاتمہ اور یکساں نظام تعلیم تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلگت میڈیا نیٹ ورک پروگرام آن ریکارڈ کے ساتھ اسامہ قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ناظرین کرام, آج بات کر لیتے ہیں گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کے اوپر. گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی بھی میدان میں, کسی بھی فیلڈ میں کسی سے کم نہیں ہے. میری مراد جو ہے ناظرین کرام, گلگت بلتستان میں ایک ایسی تنظیم ہے جو گلگت بلتستان میں اسٹوڈنٹس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. آج بات کر لیں گے گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے اوپر. گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو کہ ایک تنظیم ہے جو کہ پچھلے 6 سال سے پورے گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر رہی ہے. ان کا منشور, ان کا ویژن یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں قومیت, تعصبیات, فرقواریات, مذہب پرستی ختم ہو جائے. گلگت بلتستان کی یہ جو اسٹوڈنٹس ہے جن کا ویژن یہ ہے کہ پورے گلگت بلتستان ایک پھول, ایک گلدان کی طرح اکٹھے ہو جائیں اور ایک ہو کے گلگت بلتستان کی تعمیر ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. ناظرین کرام, میں اس وقت موجود ہوں گلگت بلتستان کی خوبصورت ترین وادی جو کہ گلگت بلتستان کا سیاحتی اعتبار سے سیاحتی ہب سمجھا جاتا ہے. میری مراد سب ڈویژن جگلوٹ سے ہے. سو ناظرین کرام, آج یہاں پہ ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے اور آج کے اسی افطار پارٹی کا اہتمام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے باشعور قوم کو ایک پیغام, ایک میسج دیا جائے کہ گلگت بلتستان سے قومیت, تعصبیت, فرقواریت, مذہب پرستی کو ختم کر کے گلگت بلتستان کے جو عوام ہے, جو پبلک ہے, وہ ایک ہو جائیں. اسٹوڈنٹس یہی ویژن اور منشور سے گلگت بلتستان میں پچھلے 6 سالوں سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آج کی اس پروگرام کے حوالے سے یہاں پہ جو علماء کرام آئے ہیں, یہاں پہ سیاسی سماجی شخصیات کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی کثیر تعداد میں اس وقت افطاری کے لیے تیاریاں جاری ہیں. میرے خیال میں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سما ہے. ایک طرف سے پبلک کو ایک اچھی میسج دے رہے ہیں. آج کی اس پروکار تقریب کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, ہم آپ کو عوام سے ملواتے ہیں, ہم آپ کو سیاسی, سماجی, علماء کرام, اسٹوڈنٹس سے آپ کو ملواتے ہیں. گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے دیں. آپ نے آج کا جو یہ پروگرام جو انعقاد کیا ہے, میں آپ کی یہ جو چینل ہے اس چینل کو میں سراہتا ہوں. بالکل, تھینک یو جی. الحمدللہ, کیونکہ یہ علاقے کے اندر ایک خوشخبری پھیلانے کے ایک ذرائع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان یہ ہے کہ محبت کی فضا کو قائم کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ کے اندر فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم, بے شک ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے, اس وجہ سے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کو اخلاق کا درس دے دے. اب میں اور آپ کے معاشرے کے اندر جینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ کائنات جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوب چکی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے اندر اور اس کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا.
भेजने का मकसद ये है कि इंसान जो है वो इंसानियत की कदर करे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंसान और जिन्नात को क्यों पैदा किया है? फजूल नहीं पैदा किया है, पैदा इसलिए किया है मेरे अजीज़ भाई कि अल्लाह तबारक व तआला के इबादत करेंगे। तो इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़्म व ज़ब्त एक तरीक़ा बताया है, जैसा कि हदीस पाक में आता है कि वाला हसब का हुस्निल खलक, यानी बेहतरीन अखलाक से, बेहतरीन किरदार, बेहतरीन अखलाक का मुकाबला ख़ानदानियत कौमियत नहीं कर सकती है। जिसकी वजह से आज आपके इस नेटवर्क के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जिन भाइयों ने यह प्रोग्राम इनेकाद किया है, हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं। और इनका मकसद भी ये है कि अपने इलाके के अंदर से कौमियत को हम ख़त्म करें और इलाकाइयत और अपनी ज़बानियत और लिसानियत की जो हम और आपके अंदर जो फितने बच चुके हैं उनको ख़त्म करने के लिए आज इन लोगों ने यह इनेकाद किया है। तो मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका ये चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इंसान के पास लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे वसाइल होते हैं। पहले तो इस तंजीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक प्यार और मोहब्बत का एक पैगाम दिया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर यह जाके इफ्तार पार्टीज़ अरेंज करते हैं। आज जगलोट में आए हुए हैं तो मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से लोग जमा हुए हैं यहाँ पे इफ्तार के लिए। तो ये एक मतलब अच्छा इक़दाम है, एक हेल्दी साइन है माशरे के लिए, तो ये होना चाहिए, ये एक पॉजिटिव साइन है इसका। तो इसी तरह से मतलब ये कल को ये एक आगाही होगी स्टूडेंट्स की और दूसरे जो है ना हमारी न्यू जनरेशन खास करके वो जो है ना उसके लिए एक आगाही होगी। बैठेंगे अपने चीज़ें डिस्कस होती है इस चीज़ में, एक कल्चरल हम आहंगी होती है एक दूसरे के साथ बैठने में, एक दूसरे को बर्दाश्त करने में। रमज़ान का मतलब बुनियादी फ़लसफ़ा ही यह है कि बर्दाश्त सब्र के साथ एक दूसरों को जो है ना ताउन करें एक दूसरे के साथ। नाज़रीन करम, स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है और गिलगित बल्तिस्तान के उभरते हुए सितारे जो कि इस तंजीम का हिस्सा हैं, इस तंजीम साजी में वो शमूलियत कर चुके हैं, इस तंजीम को पूरी गिलगित बल्तिस्तान में चला रहे हैं। और इसी तंजीम साजी के हवाले से सियासी और समाजी शख्सियात से आपको मिलाते हैं कि वो इस पार्टी के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन, क्या कमेंट्स दे रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान से एक सियासी समाजी शख्सियत इमरान मीर भाई हैं। इमरान साहब, गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम है, आपको बखूबी मालूम है गिलगित बल्तिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो आज इनकी यहाँ पे इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है, क्या कहोगे, क्या एहसासात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उसामा साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये GBSO जो तंजीम बनी है और उसका जो चेयरमैन है बशारत साहब, तो इनकी बहुत मेहनत इसमें शामिल है। 6 सालों से ये काम कर रहे हैं स्टूडेंट के हवाले से। पूरी गिलगित बल्तिस्तान में इसने तंजीम साजी की है। हम सोशल मीडिया में इसका वो देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है स्टूडेंट के लिए। तो आज जो इफ्तार पार्टी इसने जो सब डिवीज़न जगलोट में दी है लोगों को और स्टूडेंट को, मदरसे के तालिबान को, ये इफ्तार पार्टी देने का मकसद ये है कि इलाके से तासुब ख़त्म करना, वहाँ कलम कल्चर का फ़रोग देना, कलाशनकोव कल्चर का ख़ात्मा के लिए इसने ये इफ्तार पार्टी अमन के खातिर, अमन का पैगाम देने के लिए ये इफ्तार पार्टी का बंदोबस्त किया गया है। तो चेयरमैन साहब का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने इलाके में अमन व अमान के खातिर, भाईचारगी के खातिर इसने पूरे इलाके को एक पेज पे जमा किया। तो मज़ीद भी इससे तवक्को रखते हैं कि ये इस तरह के काम करें, हम इसके साथ ताउन करेंगे। बिल्कुल सर। नाज़रीन कराम, इस वक्त खूबसूरत लम्हात मेरे कप में आप देख सकते हैं। इफ्तारी की तैयारियां ख़त्म हो चुकी हैं, लोग इफ्तारी करने के लिए अभी मजलिस में बैठ चुके हैं। इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है, नात ख़्वानी हो रही है, हामद कलाम सुनाया जा रहा है, तिलावत कुरान पाक की तिलावत की जा रही है, उलमा इकराम बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मेरे कप में आप देख सकते हैं। सो इसी हवाले से बात कर लेंगे मेरे इलाके के
मेरी इस धरती के एक फ़र्जंद मौजूद हैं जो समाजी शख्सियत हैं, जिनका पेशा है कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। मेरी मुराद है ठेकेदार सलामुद्दीन साहब, जो कि अपनी फील्ड पे, अपनी प्रोफेशन में इस इलाके के लिए उन्होंने बेपनाह इस इलाके के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत की हैं। तो आज की इस पुरकार तकरीब के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सर क्या कहते हैं, आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर सबसे पहले हम आपको गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की आज की इस इफ्तार पार्टी पे आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर क्या कहना चाहोगे? ये मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, ये बहुत ही खुश आइन बात है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन और पार्टियाँ हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। इससे बाहमी इत्तेफाक, मोहब्बत और ये चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है कि नहीं। और ये इससे इलाके में अमन भी कायम होता है। ऐसी चीज़ों से मिल बैठने से इससे गैदरिंग होती है। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें माशरे में एक अच्छे उसकी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम आइंदा भी होते रहेंगे और गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ इलाकों में भी ऐसे होने चाहिए, ठीक है कि नहीं। और ये एक अमन का पैगाम है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में अमन हो, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ हमारे लिए अमन है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बानी चेयरमैन जनाब बशारत दिमसो साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश के साथ आज यहाँ पे इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है। तो भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी और किस मकसद के हवाले से बनी थी और उनका मंशूर और विजन क्या है, गिलगित बल्तिस्तान के किन इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम साजी इस वक्त जारी हैं। तो सर आप शार्ट लिए हमें बता दीजिए और हम सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह साहब भाई, शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज से 5-6 साल पहले इस तंजीम का बुनियाद रखा गया था। इस तंजीम का बनाने का जो मेन मकसद था वो गिलगित बल्तिस्तान से इलाकायत, कौमियत, फ़िरक़ावारियत का खात्मा और यकसा निज़ाम तालीम था। और हमारा जो नस्बुलैन है वो बाशऊर नौजवान मुस्तकम गिलगित बल्तिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मकसद मंशूर को मद्देनज़र रखते हुए पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तलबा को इस प्लेटफार्म में जमा किया है। हमारा जो मकसद था मंशूर के हमने अपने मंशूर को मद्देनज़र रखते हुए पूरी गिलगित बल्तिस्तान से इलाकायत, कौमियत, फ़िरक़ावारियत के खात्मे के लिए हमारे ज़िम्मेदारान कारकुनान ने दिन रात मेहनत किया है और उसके ऊपर काम किया है।